اسرائیلی حملے میں علی لاریجانی شہید، ایران نے سیکیورٹی چیف لاریجانی کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ لاریجانی کی ڈپٹی سیکیورٹی آفیسر علی باطینی اور بیٹے مرتضیٰ لاریجانی بھی شہید ہوئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی بھی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق علی لاریجانی کو مشرقی تہران میں نشانہ بنایا گیا، گزشتہ رات سیف ہاؤس پر حملے کر کے شہید کیا گیا۔ لاریجانی کو ایران کا سفارتی چہرہ کہا جاتا تھا، انقلاب ایران کے بعد ابھرنے والی اہم سیاسی شخصیت میں شامل تھے۔ لاریجانی نے ایران کی طرف سے جوہری معاملات پر مذاکرات کی قیادت کی۔ اس سے پہلے علی لاریجانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے خط سے لکھا پیغام جاری کیا گیا تھا، جس میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا تھا۔ اسرائیل نے علی لاریجانی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ علی لاریجانی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ شیئر کی گئی جس میں لکھا گیا، خدا کا بندہ خدا سے جا ملا۔ علی لاریجانی کا خون روئے گا نہیں جائے گا، پاسداران انقلاب کا علی لاریجانی اور دیگر شہداء کا بدلہ لینے کا اعلان۔ کہا، علی لاریجانی کا خون دیگر شہداء کی طرح ایرانی عزت قومی بیداری کا سبب ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا علی لاریجانی کو خراج عقیدت۔ کہا، شہید علی لاریجانی ایک نمایاں اور قیمتی شخصیت ہے، خطے میں امن و استحکام کے لیے کردار ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا آذربائیجان کے ہم منصب سے رابطہ عباس عراقچی نے کہا، دیگر ممالک میں قائم امریکی افواج کے اڈے جائز اہداف ہیں، ہماری کارروائیاں اب صرف امریکی تنصیبات کے خلاف ہیں، اب آبنائے ہرمز پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا سوشل میڈیا پر مختصر پیغام۔ ہم نے ایران کی قیادت اور فوج سب کو ختم کر دیا، ایران کی نیوی فضائیہ سمیت سب کچھ تباہ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب، کہا پیچھے ہٹیں گے نہ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت دیں گے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ نہ کرتے تو اب تک ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہوتا۔ ایران اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکا ہے، کچھ برے اثر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ایران کے خلاف جنگ میں مقررہ اہداف سے آگے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے پاس دنیا کی طاقتور ترین افواج ہیں، گزشتہ دور صدارت میں امریکی فوج کو مضبوط بنانے پر کام کیا۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایران کے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش، تل ابیب پر ایرانی حملے میں متعدد گاڑیاں تباہ، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی کمان اور اسرائیل اسلحہ کمپنی رفیل پر حملے کیے، بمباری سے 15 اسرائیلی مارے گئے۔ ایران سے جنگ میں مارے جانے والے امریکیوں کی تعداد 13 ہو چکی، 200 فوجی زخمی ہیں، امریکی سینٹ کام نے تصدیق کر دی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے جاسوسی کے الزام میں 10 غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایرانی شہروں پر حملے جاری، ایران میں ایٹمی بجلی گھر کے قریب میزائل گرنے کی اطلاع۔ امریکی فوج کا اپنا ہرمز کے قریب ایرانی میزائل سائٹس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے میزائل اہداف کا بڑا حملہ کیا گیا۔ حملے کا مقصد ایرانی اینٹی شپ میزائل سسٹم کو ختم کرنا تھا۔ تہران، کرج، شیراز سمیت متعدد شہروں میں بمباری۔ عراق میں گھر پر حملہ، 4 افراد شہید، شہداء میں 3 دن کا بچہ اور 2 سالہ بچی شامل۔ تہران میں ہلال احمر کا دفتر بھی زد میں آ گیا۔ ایران میں شہداء کی تعداد 1500 سے زائد ہو گئی، زخمیوں کی تعداد 18,000 سے بھی بڑھ گئی۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 912 شہری شہید، جنوبی لبنان کے دوسرے بڑے شہر بنت جبیل میں اسرائیل فضائی حملے، قیام کے اطراف حملوں میں شدت آ گئی۔ متحدہ عرب امارات پر حملوں میں ایک اور پاکستانی جاں بحق، خلیجی ممالک میں میزائل اور ڈرون حملے جاری۔ ابوظہبی کے علاقے بن یاس میں انٹرسیپٹ کیے گئے میزائل کے ٹکڑے گرے۔ ابوظہبی میں شاہ گیس فیلڈ پر ڈرون حملہ، فجیرہ کے قریب لنگر انداز بحری جہاز پر بھی حملہ، معمولی نقصان ہوا۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ڈرونز اور راکٹ حملے۔ عراق میں ایک بار پھر امریکی سفارت خانے پر راکٹ اور ڈرون سے حملہ ہوا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں۔ UAE وزارت دفاع کا کہنا ہے 10 بیلسٹک میزائل اور 45 ڈرونز مار گرائے گئے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ مشرقی علاقوں میں مزید 11 ڈرونز مار گرائے۔ کویتی نیشنل گارڈز کی بھی ایک ڈرون مار گرانے کی تصدیق، 2 افراد زخمی۔ کویتی وزارت دفاع کے مطابق 2 بیلسٹک میزائل، 13 ڈرونز کو ناکارہ بنایا۔
ये वक्त अमन का नहीं, अमेरिका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। नए ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिका को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का अमेरिका और इसराइल को दो टोक पैगाम। कशीदगी कम करने के लिए दो ममालिक की सालिसी से मुतल्लिक तजावीज़ मुस्तरद। ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में बताया, मुश्तबा खामनाई ने अमेरिका के साथ कशीदगी कम करने या अमन की पेशकश ठुकरा दी। मुश्तबा खामनाई ने कहा कि अमेरिका को ईरान के नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। रूस में ईरानी सफीर की मुश्तबा खामनाई की रूसी अस्पताल में जेर इलाज होने की तरदीद। इससे पहले बास मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मुश्तबा खामनाई को रूसी फौजी जहाज से मॉस्को पहुंचाया गया, जहां उनका हंगामी ऑपरेशन किया गया और अब वो मॉस्को के ही अस्पताल में जेर इलाज हैं। मुश्तबा खामनाई 28 फरवरी को हमले में बाल बाल बचे। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का दावा, आयतुल्लाह खामनाई के हेड प्रोटोकॉल की ऑडियो टेप हासिल करने का भी दावा। कहा कि उन्होंने इस ऑडियो टेप की तस्दीक भी करा ली। ऑडियो में मजहर हुसैनी कह रही हैं कि मुश्तबा खामनाई हमले से चंद लम्हे पहले ही कमरे से बाहर बागीचे में गए थे, इसी वजह से वो हमले की शिद्दत से महफूज रहे। ईरान से हमारी कौम को कोई खतरा नहीं, अमेरिका ने इसराइल के दबाव में आकर ईरान जंग शुरू की। अमेरिका के इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर के डायरेक्टर जोकेंट एहतजाजन मुस्ताफी पोल खोल दिए। कहा यह जंग इसराइल और उसके ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव के तहत शुरू की। ज़मीर के खिलाफ जाकर ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता, अगली नस्ल को जंग में धकेलने की हिमायत नहीं कर सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द-ए-अमल में कहा, जोकेंट सिक्योरिटी के मामले में बहुत कमज़ोर थे। मुत्तहिदा अरब अमारात अमरीकी क़यादत में अपना हुर्मस की सिक्योरिटी के लिए तैयार। यूएई का अमरीकी कोशिशों का हिस्सा बनने का इंडिया। यूएई के सीनियर अहदेदार का कहना है कि बातचीत जारी, अभी तक कोई बाज़ाब्ता मंसूबा तय नहीं पाया। इमाराती सदर के सिफारती मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि तिजारत और तवानाई की तरसील यकीनी बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। उधर कनाडा ने भी किसी फौजी ऑपरेशन में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। चीन का ईरान, उर्दन, लेबनान और इराक के लिए हंगामी इंसानी इमदाद फराहम करने का ऐलान। अफगानिस्तान की बिलाश्ताल कार्रवाइयों के जवाब में पाक फौज का गज़ब लिल हक़ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने तोरखम सेक्टर में अफगान तालिबान की पोस्ट तबाह कर दी। अहदाफ के हसूल तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ जारी रहेगा। अफगान तालिबान का मुबैना तौर पर अस्पताल को निशाना बनाने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के बेबुनियाद इल्ज़ामात और दावों को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अतातारक का कहना है कि अफगान तालिबान का इल्ज़ाम बेबुनियाद, पाकिस्तान ने सिर्फ दहशतगर्द और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। काबुल में मुबैना तौर पर रिहैब अस्पताल को निशाना बनाने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। सिर्फ अस्करी और दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर को हदफ बनाया गया, जिनमें असलहा, बारूद और तकनीकी आलात की ज़ख़ीरागाह शामिल थी। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने 6 हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। अफगान जरीदे की पाक फौज की जानिब से सिर्फ अफगान फौजी तंसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक। पाकिस्तानी ज़राए से गुफ्तगू में बताया, पाकिस्तान ने पीर की रात काबुल में फितना खारिज और अफगान तालिबान के कैंप को निशाना बनाया। तालिबान ने हमलों के बाद मंशियात के आदी अफराद के अस्पताल को आग लगा दी। एक जख्मी का कहना था, पाकिस्तानी तैयारों ने मंशियात के आदी अफराद के क्लिनिक से तकरीबन 200 मीटर दूर अहदाफ पर बमबारी की। किफ़ायतशार इक़दाम के तहत 23 मार्च को एजाज़ात देने की तकरीब मौखर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब 28 अप्रैल को होगी। हुकूमत का यौम पाकिस्तान की परेड मुनक्किद न करने का फैसला। तकरीबात भी नहीं होंगी। दिन को सादा परचम कुशाई की तकरीबात के जरिए मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस की तमाम वज़ारतों, डिवीजन्स और महकमों को सादगी से यौम पाकिस्तान मनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत किफ़ायतशारी से मुताल्लिक़ इजलास। पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम को मुतहर्रिक होने की हिदायत।
आबदाए हरमज से गुजर कर आने वाला पहला पाकिस्तानी बहरी जहाज मुल्की समुद्री हदूद में दाखिल। MG कराची आज कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। जहाज में 8 करोड़ लीटर खाम तेल मौजूद। MG कराची को ईरानी हुकाम ने आबदाए हरमज से गुजरने की खुसूसी इजाजत दी थी। आलमी मीडिया के मुताबिक खाम तेल की अदायगी चीनी करेंसी में की गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आबदाए हरमज में जहाजों की आमदोरफ्त के लिए नया महफूज रास्ता सामने आ गया। ईरानी साहिल से गुजरने वाला पाकिस्तानी ऑयल टैंकर नए महफूज रास्ते की अलामत बन गया। पाकिस्तान को तेल बेचने के लिए तैयार हैं। राब्ता किया तो इसे सस्ता तेल देंगे। पाकिस्तान में तैनात रूसी सफीर एल्बर्ट पी खौरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तवानाई का शोबा पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफा ताउन का अहम तरीन सतून है। अमरीका और इसराइल ने ईरान पर ताकत का इस्तेमाल करके बहरान को बढ़ाया। गवर्नर सिंध तब्दीली पर वज़ीर आज़म से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे। MKM के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली अमीनुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा MKM को एतमाद में लिए बगैर गवर्नर को हटाया गया। कोशिश होगी आइंदा भी गवर्नर सिंध का ओहदा MKM को मिले। यौम तासीस में खालिद मकबूल सिद्दीकी मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी का ऐलान करेंगे। BS11 की तैयारियां अरूज पर। ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। सस्ता तरीन टिकट 250 से 400 रुपए में दस्तयाब। एक शनाख्ती कार्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा 8 टिकट मिलेंगे। फिजिकल टिकट्स 24 मार्च से दस्तयाब होंगे। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का तरबियती कैंप इस्लामाबाद में शुरू। नेशनल T20 कप का फाइनल आज कराची और एबटाबाद के दरमियान खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ पहले सेमीफाइनल में कराची वाइट्स ने सियालकोट को शिकस्त दी। एबटाबाद और लाहौर वाइट्स का दूसरा सेमीफाइनल बारिश के बायस मंसूख हो गया। पॉइंट्स और औसत ज़्यादा होने की बुनियाद पर एबटाबाद फाइनल में पहुंची। एक्सप्रेस न्यूज़ इवेंट का मीडिया पार्टनर है। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सूबाई दारुल हुकूमत में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। कोयटा, कंजारो, मीरपुर, माथेलो, नूरपुर, थल में बादल बरस पड़े। रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, बकर और दीगर इलाकों में भी बारिश। 25 मार्च तक मुल्क में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। ईद करीब, बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर। कपड़ों, जूतों और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश। ख़वातीन और बच्चे खरीदारी में मसरूफ। रंग बिरंगी कश्मीरी चूड़ियाँ बाजारों में सज गई। नफीस डिज़ाइन और रवायती काम ने दिल जीत लिए। झुमके, हार और बड़ी अंगूठियाँ भी पसंदीदा। मर्द भी खवातीन से पीछे ना रहे। पेशावर में नौजवानों की ईद रिवायती पहनावे के बगैर अधूरी। शलवार कमीज के साथ मैचिंग वास्कट की खरीदारी ज़रूरी। पाक फ़िज़ाइया के अजीम हीरो MM आलम की 13वीं बरसी आज मनाई जा रही है। MM आलम ने 65 की जंग में 11 भारतीय तैयारों को तबाही से दो चार किया। सिर्फ 1 मिनट में 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। वतन अजीज़ के तीसरे बड़े फौजी एजाज सितारा जुर्रत से नवाजा गया। दुनिया में जिंदा रहूँगा, जुल्मत में ताबिंदा रहूँगा। मैं हूँ मोहम्मद का मतवाला, अल्लाह है मेरा रखवाला। साया फिगन है तैबा वाला, मेरा मुहाफिज है कुरान। नाम है मेरा पाकिस्तान। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का प्यारा रमजान जारी। 27वें रोज़े की नशरियात में तकरीरी मुकाबले का फाइनल। 4 कामयाब उम्मीदवारों के नाम और तहाइफ का ऐलान। प्यारा जायका में मटन कुन्ना तैयार। मौलाना आज़ाद की दीनी मसाइल पर रहनुमाई।